એમણે માત્ર 7 મહિનામાં એવા કામ કર્યા કે જેનાથી આજે 50 લાખ પંજાબ વાસીઓના વીજળી બિલ ઝીરો થયા છે। એવા માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલ, માનનીય ભગવત માનજી, સાથે સાગરભાઈ, રીનાબેન અને તમામ ઉપસ્થિત મહાનુભાવો, સામે બેઠેલા ભાઈઓ અને બહેનો, મિત્રો, આજે લડાઈ ભાજપ કોંગ્રેસને હરાવવાની નથી। આજે લડાઈ છે તમારા બાળકને જીતાડવાની છે। આજે માની લો કે ગુજરાતમાં 27 વર્ષથી ભાજપનું શાસન છે। ઘણા મિત્રો એમ કહેતા હોય કે મારો મામો ભાજપમાં છે, કાકો ભાજપમાં છે। મારે એમને પૂછવું છે કે મામાએ તમારો વીજળી બિલ દર મહિને આપવા આવે છે ખરો? જોરથી બોલો સર, હોકારા પોકારા કરો, આમ ખબર પડે। આઈ એમ મામો જે પણ બીજા પક્ષમાં હોય એ ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત કરવા માટે આવે છે ખરો? મામો બીજા પક્ષનો હોય, ધારાસભ્ય બને કે મંત્રી બને, આપણે ખેડૂતોને પૂરતા ભાવ મળે છે ખરા? મામો કોઈ પણ પક્ષમાં મુખ્યમંત્રી હોય પણ મારી માતા બેન દીકરીઓને મહિને 1000 રૂપિયા મળે છે ખરા? તો મિત્રો સવાલ ઈ છે, આજે આપણે જ્ઞાતિ જાતિ ધર્મથી ઉપર ઉભી અને એક કામ કરવાનું છે લોકશાહીના પર્વનું। મિત્રો, ઘણા બધા એમ કહે છે કે આ તો મારી જ્ઞાતિનો છે એટલે હું મત આપું છું, મારી જાતિનો છે એટલે મત આપું છું। મારે આપને પૂછવું છે, શું ક્યારે આપણે એવું કીધું કે આ કલેક્ટર મારી જાતિનો મૂકજો એવું કીધું? આ ડીએસપી મારી જાતિનો મૂકજો એવું કીધું? એવું કહો તો થાય શું? દેશ વેચાઈ જાય। સાચું કે નહીં? તો મિત્રો, મારે આપને એટલા માટે કહેવું છે કે સારા વ્યક્તિઓ રાજનીતિમાં આવવા જોઈએ। એ કોઈ પણ જ્ઞાતિ જાતિ ધર્મના હોય, કોઈ પણ વર્ગના હોય। આજે મને ખબર છે મારી આશાબેન, આશા વર્કર બહેનો બધી આવી છે, એમની પીડા જો, એમની પીડા 27 વર્ષમાં ભાજપ સરકારે ઉકેલી નથી। સાચું? ઉકેલી નથી। અચ્છા, આમ આદમી ઉપર આશા છે ને તમને? તમારે ડરવાની જરૂર નથી, તમારો ભાઈ આવી ગયો છે। હવે માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી આવી ગયા છે। મિત્રો, તમને કલ્પના નહીં હોય તમારા હક માટે અરવિંદજીને કેવી કેવી તકલીફો સહન કરવી પડે છે। તમારા હક માટે અરવિંદજીને રાત્રે ઊંઘવા નથી દેતા ભાજપના નેતાઓ। પણ એમણે નક્કી કર્યું છે, મને કહેતા હતા, મને કે સુદાનજી, ये जितने भी जुल्म मेरे पर करे, लेकिन मेरी आशा वर्कर बहनें हो या गुजरात की एक एक बहनें हैं, जब तक मैं उसको न्याय नहीं दिलाऊंगा तब तक सोऊंगा नहीं चैन से। मित्रों, हमने रात दिवस मेहनत करे છે આપણા માટે। તમે જુઓ, ધોમ ધડકાના આવતા હોય છે, પણ ભાજપ વાળા દરરોજ ઈડી ને, સીબીઆઈ ને, ઇન્કમ ટેક્સ ને અરવિંદજીના મંત્રીઓ ઉપર છોડી દીધા છે। વધારામાં વધારે એલજી ને મૂકી દીધા અહીંથી। આ પીડા કોના માટે છે ખબર છે? કોના માટે છે? આ અરવિંદજી સહન કોના માટે કરે છે? હાથ ઊંચો કરીને મને કહો, તમારા માટે કરે છે કે નથી કરતા? મિત્રો, વસ્તુ ઈ છે, આજે જો અરવિંદજીને આપણે મદદ નહીં કરીએ, આજે અરવિંદ કેજરીવાલજી ઉપર આપણે ભેગા નહીં રહીએ સાથે, તો યાદ રાખજો, બીજી વાર તમારા મુદ્દાઓને કારણે તમારા બાળકને સારું શિક્ષણ મળે એના માટે, તમારા બાળકને મફત આરોગ્ય મળે એના માટે કોઈ રાજનીતિ કરવા જ નહીં આવે। આ અરવિંદજીને મને ખબર છે કેટલાક ગદ્દારો આ ધરતી ઉપર રાક્ષસો પેદા થયા છે। એને ખબર છે કે અરવિંદ કેજરીવાલજી આવી ગયા
એટલે ગુજરાતમાંથી ભ્રષ્ટાચાર બંધ કરી દેશે અને એની દુકાનો બંધ થઈ જશે. મિત્રો, મને ખબર છે એક આપણા ભાજપના ધારાસભ્ય જ્યારે પહેલી વાર ધારાસભ્ય બને છે ત્યારે માત્ર 4 એકર જમીન હોય છે અને અત્યારે કેટલી છે? 1000 એકર છે. આ લોકોને બીક લાગી છે. ભ્રષ્ટાચાર કા કાલ અરવિંદ કેજરીવાલ. તો મિત્રો, અત્યાર સુધી મામા, ભાણેજ, કાકા એના માટે મતદાન કર્યું છે. આ વખતે અરવિંદજી તમને મને કહેવા આવ્યા છે કે આ વખતે મતદાન છે ને એ તમારા બાળકના ભવિષ્ય માટે કરજો. મિત્રો, બીજા પાર્ટીની સરકાર આવશે. મને હમણાં ભાજપ વાળા કહેતા હતા, મને કહે સુદાનભાઈ આ વખતે અમારી સરકાર આવે એટલે અમે 3 કામો કરવાના છીએ. મેં કીધું શું? મને કે માતા બહેનો દીકરીઓના 350 રૂપિયા ગેસના સિલિન્ડરના હતા. માતા બહેનોએ હરખથી અમને મત આપ્યા એટલે અમે 1100 કર્યા. હવે માતા બહેનો ફરીથી મત આપે એટલે ગેસના સિલિન્ડરના 1800 રૂપિયા કરવાના છે. મેં કીધું આ તો પીડા કહેવાય. મન કે જેટલી પીડા આપીએ અમારા જ્ઞાતિના આગેવાનો ભાજપના ઈ માતા બહેનોને ફોસલાવી લે છે અને એને અમે થોડા ઘણા આપી દઈએ એટલે માતા બહેનોના મતદાન મળી જાય અને અમે 1800 રૂપિયા ગેસના સિલિન્ડરના કરવાના છીએ. બોલો ભાજપને મત અપાય. બીજું મિત્રો, આપણે સવારે નીકળતા હોઈએ બાઇક લઈને, ગાડીમાં. બીજું કામ એ લોકો એવું કીધું કે સુદાનભાઈ અમે 62 રૂપિયા પેટ્રોલ ડીઝલનો ભાવ હતો એના 100 રૂપિયા કીધા એટલે બધી તાલુકા જિલ્લા પંચાયતોમાં લોકોએ અમને મત આપ્યા. હવે આ વખતે ભાજપ વાળાએ નક્કી કર્યું છે કે અમને મત આપે લોકો એટલે પેટ્રોલ અને ડીઝલના પૂરેપૂરા 150 કરી દેવા છે. કેટલા? 150. ત્રીજી વસ્તુ એમણે કીધી કે અમે 6000 સ્કૂલો બંધ કરી. હવે જો લોકો ગુજરાતના મત આપે એટલે બીજી 6000 બંધ કરી દેવી છે. હવે તમારે મિત્રો જાગવાની જરૂર છે. મને ખબર છે કે તમને ભરમાવશે મુદ્દાઓ ઉપર. ભરમાવે છે કે નહીં? ભરમાવે છે ને? કોઈ ભરમાતા નહીં. પંજાબમાં માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી ઉપર એવો આક્ષેપ કર્યો હતો કે આ તો આતંકવાદી છે, આ તો આવા છે. પણ પંજાબની જનતાએ કીધું તું ગમે તેવા હોય અમારા ભાઈ અરવિંદ કેજરીવાલજી છે એવું કીધું તું સાહેબ. આજે અરવિંદજીને આપણે ગેરંટી આપવાની છે કે આના ભાજપ વાળા તમારી ઉપર કાદર ઉછાળશે. તમે ચિંતા ન કરતા, અમે તમારી સાથે બેઠા છીએ. બરોબર કે નહીં? બરોબર કે નહીં? મિત્રો, આજે પંજાબ વાળા ભરમાવાની કોશિશ કરી હતી ભાજપ કોંગ્રેસ. પંજાબમાં ભરમાયા નહીં. 50 લાખ પંજાબ વાસીઓના વીજળી બિલ 0 આવે છે. તમારે જોઈએ છે એટલે કેમ આમ જમીન આવ્યા છો કે હું છે પડકાર ઢીલા નો પડો. હજી તો ચૂંટણીઓ હજી તો માથે આવવાની છે. મિત્રો, આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર આવતાની સાથે 8 ડિસેમ્બરે પરિણામ આવશે. તારીખ લખી લેજો. 1 માર્ચથી વીજળી બિલ 0 હશે. 0. માતા બેન દીકરીઓ 18 વર્ષથી ઉપર છે બધાએ તારીખ લખી લે. આમ આદમીની સરકાર આવતાની સાથે દરેક માતા બેન દીકરીના ખાતામાં મહિને 1000 રૂપિયા નાખી દેવામાં આવશે. ત્રીજું, બેરોજગારી વધી છે. વધી છે કે નહીં? માત્ર ભાજપના કાર્યકર્તાઓ કેટલાક છે ઈ સેટિંગ થી પાર પડી જાય છે, બાકી કોઈનો વારો આવતો નથી. બેરોજગાર યુવાનો માટે મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
10 લાખ 5 વર્ષમાં સરકારી નોકરી આપીશું, 10 લાખ. અને જેટલા પણ બેરોજગાર યુવાનોને ખાનગીમાં 80% નોકરી આપવામાં આવશે. અને એ પણ જ્યાં સુધી ન મળે ત્યાં સુધી બેરોજગાર યુવાનને મહિને 3,000 રૂપિયા જમા કરી દેવામાં આવશે. મિત્રો, તમારે નક્કી કરવાનું છે, આ જે ચૂંટણી છે એ આપણા માટે છેલ્લી ટ્રેન છે. 27 વર્ષથી ભરમાવે ચૂંટણી આવે એટલે અલગ જ મુદ્દો હોય કે ચાંદમાં ફલાણું છે, આ વીજળીમાં આમ છે, આકાશમાં રતાડું છે. આવા ભરમાવાની કોશિશ થાય છે દર ચૂંટણીમાં. થાય છે કે નથી થતી? આ વખતે એમને કહેજો કે અમારે ભરમાવાનું થતું નથી. અમને માત્ર ને માત્ર અમારા હક, અધિકાર અને ટેક્સના રૂપિયા છે ને એનું પૂરેપૂરું વળતર આપો. બાકી કોઈ રાજનીતિમાં તમારે આવવાની જરૂર નથી. મિત્રો, રાજનીતિ શેના માટે હોય? આ આશાબેન બેન વર્કરો બેઠી છે, માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી એમના માટે જાહેરાત કરશે. પણ તમે વિચાર કરો, એમને મળે છે શું? માત્ર 2,000, 2,500. સાચું કે નહીં? મને ખબર છે બધી, મને બધી ખબર છે. પણ મારે બધી આશાબેન બહેનોને એક વિનંતી કરવી છે કે 30-40 દિવસ છે, તમારે આજથી ઘરે બેસવાનું નથી. તમે એક એક ઘરે જાઓ, એક એક ઘરે સમજાવો, દીકરાઓને સમજાવો, દીકરીઓને સમજાવો અને એમને કહો કે આમ આદમી પાર્ટી આવશે તો જ તમારું ઉજળું ભવિષ્ય થશે. આશાબેન વર્કરો બહેનો, આંગણવાડી બહેનો હોય, તેડાઘરની બહેનો હોય, તમામની માંગો આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર આવતાની સાથે પૂરી કરી દેવામાં આવશે. સાહેબ, મને ખબર છે તમારી ખૂબ માંગો છે, તો માનનીય સાહેબ શ્રી કરશે. ખેડૂતો માટે મારે એક જાહેરાત કરવી છે. મિત્રો, ભાજપ વાળા ઉદ્યોગપતિના દેવા માફ કરે છે. કરે છે કે નથી કરતા? કેટલાને ખબર છે? હાથ ઊંચો કરો તો એટલે મને ખબર પડે. બધાને ખબર છે. ઉદ્યોગપતિઓના 11 લાખ કરોડ રૂપિયા દેવા માફ કર્યા. આપણા ખેડૂતોના 10,000 કરોડ કરવામાં ભાજપના પેટમાં દુખે છે. આને જવાબ આપવાનો છે. પણ આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર આવતાની સાથે ખેડૂતોના 2 લાખ રૂપિયા સુધીનું દેવું માફ કરી દેવામાં આવશે. સાહેબ, એટલું નહીં, આપણે આ હું શર્ટ પહેર્યો છે, એ શર્ટ કંપની ભાવ નક્કી કરે છે. સાચું કે નહીં? ભાવ કંપની નક્કી કરે છે. આપણે કોઈ પણ વસ્તુ લેવા જઈએ, ભાવ સામેવાળો નક્કી કરે છે. પણ હિન્દુસ્તાનનો મિત્રો એક એવો ખેડૂત છે, જગતનો તાત, કે જેને ઉત્પાદન કરે, રાત દિવસ સર્પની વચ્ચે, અંધારો હોય, વીજળી હોય, ટાઢ પડતી હોય, એની વચ્ચે પાક ઉત્પાદન કરે અને ભાવ મારા બેટા કોઈક બીજા નક્કી કરે. આને બદલવું છે કે નથી બદલવું? તો અહીંથી ખાતરી આપીએ છીએ, આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર આવશે. આ ચોમાસું ભાજપનું છે, આમાં આપણે કઈ નહીં કરી શકીએ. પણ જાતિ, જ્ઞાતિ, ધર્મ બધું ભૂલી અને એક ખેડૂત સમાજ થઈને મતદાન કરજો. આવતા ચોમાસામાં તમારા 5 પાકની પૂરેપૂરું ભાવ આપવાની, તમારા ઘરેથી ઉપાડવાની જવાબદારી સરકારની હશે. સાહેબ, મિત્રો, 27 વર્ષ થયા ભાજપ. આપણે ઉત્તર ગુજરાતમાં 1200 ફૂટ પાણી નથી. સાચું છે? સાચું છે? આ વ્યવસ્થા કેમ? નર્મદાના પૂરતા પાણી પહોંચ્યા નથી. ડેમ તો 20 વર્ષથી બની ગયું છે. પણ મિત્રો, આ લોકોની દાનત નથી. આપણે ખેડૂતોને ખાતરી આપીએ છીએ કે આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર બનતાની સાથે 1.5 વર્ષની અંદર તમામ ખેડૂતોના ખેતર સુધીનું સિંચાઈનું પાણી પહોંચાડી દેવામાં આવશે. હવે આ કોઈ જુમલા નથી હો, આ ઓરિજિનલ છે. આપણે 15 લાખની જેમ નકલી નથી. અને એક વાત ધ્યાન રાખવાની, ચિત્તે કી ચાલ,
बाज की नजर और अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी पे कभी शक नहीं किया करते हैं। અને વધારે કારણ કે માન્ય બે મહાનુભાવોને બોલવાનું છે, પણ મારે એક વચન તમારી પાસેથી જોઈએ છે। આટલા વચન આમ આદમી આપે છે, ભાજપ વાળા શું કરે છે? વચન નથી આપતા, કામની વાત નથી કરતા। ઈ એમ કહે છે કે અરવિંદ કેજરીવાલજી આવા છે, ભગવત માનજી આવા છે, ગોપાલ ઇટાલિયાજી આવા છે, ઈશુદાન ગઢવી આવા છે। મિત્રો, આનાથી આપણે શું ફરક પડે? કઈ પડે? તમારા બાળકનો શિક્ષણ સારું થશે એનાથી? એને એવું કહો કે તમારા બાપમાં ત્રેવડ હોય તો કામની રાજનીતિ ઉપર મત માંગો, અને તો જ રાજનીતિ છે। મિત્રો, રાજનીતિ એ સમાજ સેવાનું મોટું સ્વરૂપ છે। मान लो કે 25 આપણે સમૂહ લગ્ન કરાવતા હોઈએ દીકરીઓના, સમાજના લોકો ભેગા થઈને। હું આપને કહું છું કે સરકાર એટલે શું? સમાજ સેવાનું મોટું સ્વરૂપ એટલે સરકાર। 1 લાખ ગરીબ દીકરીઓના સાહેબ, બાપની દીકરીઓના 1 લાખ સમૂહ લગ્ન સરકાર કરાવી શકે ને, એનું નામ સરકાર કહેવાય। અને એટલા માટે કહું છું કે એક વચન તમારું જોઈએ છે। एक व्यक्ति 100 व्यक्ति जोड़े, हाथ ऊंचो करो, मैंने कौन कौन जोड़से? जोड़सो 100 व्यक्ति, पाको? बोलो भारत माता की जय जवान। बहुत बड़ी संख्या में मां और बहनें आई हैं, आज बड़ी खुशी हुई। आना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा महंगाई से पीड़ित महिला वर्ग है। इन्होंने रसोई चलानी है, इनको सब पता है कि अब तो परांठे पर भी 18% टैक्स लग गया, दूध पर, दही पर, छाछ पर कोई ऐसी चीज नहीं खाने वाली बची, कोई चीज नहीं बची जहां टैक्स ना हो। सिर्फ सांस लेना ही फ्री में है। शायद आने वाले दिनों में वो भी ना कर दें कि अमीरों के लिए कोटा सांस का इतना है, गरीबों के लिए इतना है, बस इतने सांस ले सकते हो वरना पैसे दो। आशा वर्कर आई हैं, पंजाब में भी भारी गिनती में आशा वर्कर बहनें हैं। कोई रहने का प्रबंध नहीं था, कोई ऑफिस नहीं था, सबसे ज्यादा काम ये करती हैं, घर घर जाती हैं लोगों के पास। तो हमने उनसे वादा किया था कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो आशा वर्कर जो हैं उनको सम्मान दिया जाएगा, मान दिया जाएगा, इज्जत दी जाएगी और ऑफिस और काम करने का माहौल दिया जाएगा, जो 7 महीने में हमने दे दिया। अभी मुझे पता चला है कि 7 दिन पहले आशा वर्कर बहनें यहां आंदोलन कर रही थी, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। अरे नारी शक्ति को जेल में डालोगे तो खुद कहां जाओगे फिर? और उन्होंने कहा है, वो बोल के आई हैं, कोई बात नहीं जेल में डाल दो, दिसंबर के बाद हम सरकार पलट देंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या होती है। यही चीज पंजाब में थी। दिल्ली में परिवर्तन की लहर उठी, काफिला बढ़ता गया, आंधी तूफान में बदल गई, तूफान पंजाब पहुंचा। पंजाब में बड़े बड़े दिग्गज जो कहते थे हम कभी हार नहीं सकते, वो 70 हजार मतों से हारे। और उनको हराने वाले कौन थे? आम लोगों के बेटे बेटियां। ये जनता है जी, ये पब्लिक है जी, इनको अंडर एस्टिमेट मत करो, इनको हल्के में मत लो, घमंड मत करो कि हमें जनता का पता चल गया, ये ऐसे बदल जाती है, ऐसे बदल जाती है। जनता कभी अपने पासवर्ड बताती नहीं है, अपने पास ही रखती है। जनता चुप रहे 5 साल, जनता अपने होठों को सीले 10 साल, जनता दिल पर पत्थर रख ले 15 साल,
जनता बिल्कुल ही अपना मन मार के सब्र कर ले, गुजरात की तरह 27 साल। लेकिन जब 27 साल बाद जनता जागती है ना, तो फिर 27 साल का हिसाब 27 मिनट में ले लेती है। भाई पब्लिक है, ये पब्लिक है, सब जानती है। कोई नेता लोगों से बड़ा नहीं हो सकता। जब अरविंद केजरीवाल जी पहली इलेक्शन लड़ रहे थे, नई नई पार्टी बनी थी, तो इन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी ने स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के खिलाफ कागज अपने नॉमिनेशन भर दिया। शायद आप में से भी बहुत होंगे जिन्होंने ये कहा होगा, अरे नहीं यहां से क्यों लड़ना था, कहीं और से लड़ लेते, एक आध सीट आ जाती, ये बड़े नेता हैं, ये हारते नहीं हैं। नई दिल्ली विधानसभा से कागज भर दिए। शीला दीक्षित जी अपना वोट करने के लिए बूथ पे आई। वोट वाले दिन बाहर निकलते ही मीडिया ने पूछा, अरविंद केजरीवाल का कोई असर तो नहीं पड़ेगा? तो उन्होंने क्या कहा, हु इज केजरीवाल, ये केजरीवाल कौन है? तीसरे दिन रिजल्ट आए, पूरी जिंदगी नहीं भूल पाई कि हु इज केजरीवाल। जनता है, ये याद करवा देती है सब कुछ, पब्लिक है। अभी मैं गुजरात घूम रहा हूं आजकल। हम खेड़ ब्रह्मा गए, जूनागढ़ गए, दाहोद गए, सुरेंद्रनगर गए, वडोदरा गए, अभी आपके पास आए हैं, दिशा जाएंगे। मेरे ख्याल में इतने नाम तो मेरे ख्याल में अमित शाह को भी नहीं पता, याद होंगे गुजरात के। हम जा रहे हैं जगह जगह, आदिवासियों के पास जा रहे हैं, हर समाज के पास जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी, गुजरात को चेंज चाहिए। मैंने कहा चेंज कौन है फिर? कहते जी आम आदमी पार्टी। मैंने कहा कांग्रेस? कहते कांग्रेस चेंज नहीं है जी, वो तो एक्सचेंज है। बदल लो, 4 इसके कम हो रहे हैं इनसे ले लो, 5 उनके कम हो रहे हैं इधर से ले लो। कांग्रेस तो विधायक बेचने वाली कंपनी बन गई है। उनको तो अपने दफ्तर के सामने लिखना चाहिए, जहां जनता द्वारा चुने हुए विधायक सस्ते रेटों पर बिकते हैं। कभी गोवा में चले गए 8, कभी मध्य प्रदेश में, कभी कर्नाटका में। तो कांग्रेस को वोट मत देना, वो तो कोमा में चली गई। कांग्रेस की हालत उस 90 साल बुजुर्ग की तरह हो गई जिसको डॉक्टर भी बोल देते हैं भाई सब घर पे ले जाके सेवा कर लो, अभी इसमें कुछ नहीं है। कांग्रेस आई, लेकिन गुजरात में कांग्रेस गई। जैसे दिल्ली में गई, 0, 15 में भी 0, 20 में भी 0, एक भी विधायक नहीं है उनका। ये पब्लिक है। तो हम तो ये आपके लिए संदेश लेके आया हूं पंजाब से। अभी 7 महीने हुए हैं पंजाब में सरकार बनी हुई। हमने 50 लाख घरों की बिजली 0 कर दी। हमने 20,000 के लगभग सरकारी नौकरियां दे दी, नियुक्ति पत्र दे दिए हमने। कल ही हमारे यहां 14, 15, 16 अक्टूबर को पंजाब पुलिस में भर्ती के पेपर हुए हैं। 2 लाख नौजवानों ने, युवाओं ने पेपर दिए हैं, लेकिन हमारे यहां पेपर फूटता नहीं है। पेपर फूटा, सपना टूटा। फिर युवाओं का दिल टूट जाता है कि आधी आधी रात तक पढ़ाई करते हैं, सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं। क्या फायदा हुआ अगर एक दिन पहले नेताओं के बच्चों को पेपर मिल गया कि ये पेपर आएगा कल, उसमें लिख देना, क्या फायदा हुआ फिर? ये कंपटीशन नहीं है। जीतना और छीन लेना एक बात नहीं होती, ये छीनते हैं हमसे। पंजाब में 117 में से 92 सीटें हमारे पास हैं। 92 में से 82 पहली बार बने हुए विधायक हैं, जिसमें मैं भी हूं। मैं पहले एमपी था, विधायक पहली बार। और सभी आम घरों के बेटे बेटियां हैं। क्यों भाई? आपके बेटे बेटी क्या
विधायक नहीं बन सकते हैं? आपके बेटे बेटियां चेयरमैन नहीं बन सकते हैं? क्या उनको कुर्सी पर बैठना नहीं आता क्या? इन्हीं के बेटे बेटियां सोने के चम्मच लेकर मुंह में पैदा होते हैं तो यही बैठते हैं। इनको बोल देना अरविंद केजरीवाल भगवंत मान आए थे, इनके बेटे बेटियों को बोल देना अपना बोरी बिस्तरा बांध लो, आम लोगों के बेटे बेटियां गुजरात में आ रहे हैं। हमने विधायकों की पेंशन बंद कर दी आते ही। इतनी इतनी पेंशन, 4-4 लाख पेंशन लेते थे, बंद कर दी हमने। हमने 1 करोड़ रुपया सम्मान राशि, अगर कोई शहीद होता है, फौजी जवान या कोई पुलिस वाला अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद होता है, 1 करोड़ रुपया दूसरे तीसरे दिन उसके घर पे पहुंचता है। दिल्ली में भी पहुंचता है। पहले क्या करते थे? शहीद की विधवा को सिलाई मशीन, ये सम्मान करते हैं देश के रखवालों का। हमने 5 फसलों पे एमएसपी दे दी। मंडी में अभी धान आ रहा है, हर रोज धान आता है, हर रोज शाम को उसके पैसे किसान के खाते में चले जाते हैं। उसको इंतजार नहीं करना पड़ता 2 महीने 4 महीने के मेरी फसल के पैसे मिलेंगे, मैं कर्ज उतारूंगा, मैं बेटी की शादी करूंगा, मैं बच्चे की फीस भरूंगा। ऐसा नहीं है। ये गुजरात में भी हो सकता है अगर नीयत सच्ची हो, सच्ची नीयत। तो भी मीडिया वाले मुझसे पूछ रहे थे आपने कैसे रोक दी जी आंधी? मैंने कहा कौन सी आंधी? कहते दिल्ली में और पंजाब में आपने ये आंधी कैसे रोक दी? मैंने कहा कौन सी आंधी? कहते ये बीजेपी वाली। मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा हमारा क्या है? कहते जी झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है? कहते जी कीचड़ में। मैं कहा झाड़ू क्या करता है? कहते कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, दिल्ली और पंजाब में कमल उगे ही नहीं, ऐसी सफाई आप कर दो। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। राजनीतिक गंदगी साफ की जाएगी। और इनको लगता है हम पैसे दे देंगे, हम लालच में ले लेंगे लोगों को। मैंने कहा पब्लिक है भाई। एक बीजेपी वाला मेरे पास आया, कहता जी हम जीतेंगे। मैंने कहा कैसे? कहता हम एक रात पहले झंडियां इतनी लगा देते हैं लोगों के घरों पर रातों रात कि जब घर पे झंडी लग जाती है ना तो फिर वोट देना ही पड़ता है शर्म शर्म से। मैंने कहा लोगों को इतने भी मूर्ख मत समझो, ये पब्लिक है। घर पे झंडी किसी और की, जेब पे टैग किसी और का, मोटरसाइकिल पे झंडी किसी और की, रैली किसी और की में जाते हैं, मोदी मोदी कहीं और करके आते हैं, अंदर जाके काम किसी और का कर देते हैं। यही होता है ना, यही कर देना बस। धन्यवाद। पंजाब से हमारे कुछ मित्र आए हुए हैं, हमारे एक एमएलए लुधियाना से गरेवाल साहब, इनके लिए तालियां बजाइए। एमएलए हैं, आम घर से हैं, बड़े बड़े दिग्गजों को हराया। पैसे से नहीं हम हरा सकते इनको, पैसा तो हमारे पास है नहीं, इनके पास है आपका माल लूटा हुआ बहुत। ये आएंगे आपको इलेक्शन से पहले, ये आएंगे और जैसे ही ये आए जी बैठिए। बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद। ये असल में परिवर्तन है। तालियां एक बार जोरदार। बैठिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर महिलाओं के बिना घर नहीं चल सकते तो इनके बिना देश भी नहीं चल सकते, ये याद रखना। तो आइए इकट्ठे हो जाइए, झाड़ू का बटन दबाइए। हमारे पास पैसे नहीं है, इनके पास बहुत पैसे हैं, लूटा हुआ माल है, लेकिन जो चीज हमारे पास है वो इनके पास नहीं है। जो खजाना हमारे पास है वो इनके पास नहीं है। कौन सा खजाना?
मैं छोटा था जब मेरी दादी एक छोटी सी कहानी सुनाती थी। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी जब जगह जगह जाके लोगों को सत्य का संदेश दे रहे थे, तो किसी गांव के बाहर बैठे थे, तो गांव वालों ने कहा कि एक बहुत ही फकीर आदमी आ गया, कोई रब का बंदा आ गया, किस्मत पलट देगा, उसकी सत्संग करते हैं। लोग गए तो गुरु नानक जी ने पूछा, भाई आप किधर आ रहे हो? तो बोले हम आपके साथ चलेंगे। तो गुरु नानक साहब ने कहा कि हमारे रास्ते सच वाले हैं, मुश्किल रास्ते आपसे चला नहीं जाएगा। कहते जी चलेंगे। चलते गए, थोड़ी दूर जाके चांदी के बड़े बड़े ढेर आए, इधर भी चांदी इधर भी चांदी। जिनको चांदी चाहिए थी उन्होंने चांदी उठाई और बोले गोली मारो, सच को काम बन गया, चांदी मिल गई, चलते हैं। काफिला आधा रह गया। गुरु नानक साहब ने पूछा जी तुम? बोले हम चांदी वाले नहीं हैं, हम साथ चलेंगे। गुरु नानक साहब ने कहा रास्ते मुश्किल आ सकते हैं। कहते जी आने दो। चलते गए सोने के ढेर आ गए, इधर भी सोना उधर भी सोना। जिनको सोना चाहिए था उनको उन्होंने सोना उठाया, बोले चांदी वालों से तो ठीक रह गए, अब सोना मिल गया। आदमी 10 रह गए। गुरु नानक साहब ने पूछा भाई तुम? कहते जी हम सोने चांदी वाले नहीं, हम साथ चलेंगे। गुरु साहब ने कहा रास्ते मुश्किल आ सकते हैं। कहते आने दो। चलते गए हीरे मोतियों के ढेर आए, वो 10 आदमी हीरे मोती उठाकर चले गए, सिर्फ भाई मर्दाना जी रह गए। गुरु नानक साहब ने कहा कि मर्दाना जी तुम? तो मर्दाना जी ने कहा जी मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो उनसे अमीर हूं। तो गुरु नानक साहब ने पूछा मर्दाना, ना तेरे पास सोना ना चांदी ना हीरे ना मोती, तो अमीर कैसे है? तो भाई मर्दाना ने कहा कि मैं उनको कैसे बताऊं, उन लोगों को जो सोना चांदी हीरे मोती लेके अपने आप को अमीर समझ के घर चले गए, जो सोना चांदी और हीरे मोती बांट रहा है, जब वही मेरे साथ चल रहा है गुरु, तो मेरे जैसा खजाना किसके पास है? सरपंच कौन बनाता है? पब्लिक। जिला परिषद का प्रधान कौन बनाता है? पब्लिक। विधायक कौन बनाता है? पब्लिक। मंत्री कौन बनाता है? पब्लिक। मुख्यमंत्री कौन बनाता है? पब्लिक। प्रधानमंत्री कौन बनाता है? पब्लिक। जब पब्लिक ही हमारे साथ है तो हमारे जैसा खजाना और किसके पास है भाई? उनको पैसे पे दिहाड़ी पे लाने पड़ते हैं लोग अपनी रैलियों में। वो दाईं साइड जो बैठे होते हैं 40-50, उनका रेट भी तय हो चुका है 2 महीने का। उन्होंने यही करना होता है, हर 10 मिनट बाद मोदी मोदी बोलना होता है। भाई दिहाड़ी है उनकी, चलो रोजगार मिल रहा है किसी को। लेकिन हम नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं कि आपके स्कूल अच्छे करेंगे, शिक्षा अच्छी कर देंगे। पंजाब में हमने 100 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक खोल लिए, सिर्फ 100 दिन में 100, और वहां से 3 लाख से ज्यादा लोग अब तक दवाई लेके ठीक होके घर जा चुके हैं। अगर नीयत अच्छी हो, नीयत सच्ची हो, तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो हम तो आप जैसे हैं, ये हमसे नहीं डरते, हमारी कोई औकात नहीं है कि हमसे डरते हैं। ये हमसे बिल्कुल भी नहीं डरते। ये छोटे से संदेश पर आप इतनी भारी गिनती में, भारी संख्या में चले आते हो, ये आप लोगों से डरते हैं, यहां से डरते हैं। इसीलिए हमें कहते हैं आप इधर क्यों आते हो, आपकी हम ग्राउंड कैंसिल करवा देंगे, यहां रैली नहीं कर सकते। मैंने तो पहली बार अब देखा आके गुजरात में, मैंने सड़कों में गड्ढे देखे थे, लेकिन गड्ढों में सड़कें पहली बार देखी हैं गुजरात में। कोई सड़क चले जाओ 50 किलोमीटर है जी, 3 घंटे का रास्ता है, क्या करेंगे? तो ये हालत है 27 साल बाद। भाई साहब 27 साल हो गए, हाथ जोड़ के बेनती है,
अब तो बदल लो, हर साल पेड़ भी अपने पत्ते बदल लेता है, अब तो बदल लो। पेड़ों को भी खुशी होगी, नया सूरज आया, नई हवा आई, ईमानदारी की ठंडी हवा आई, चलो कुछ तो बदला। बदलाव, परिवर्तन। तो हम आपको ये कहने आए हैं, सर्वे वर्वे आ गए हैं काफी और सरकार बन रही है तुम्हारी। आमतौर पे क्या होता है, नेता जीत जाते हैं, लोग हार जाते हैं। हम उल्टा करने आए हैं, हम आपको जिताने आए हैं, आपको, आपके बेटे बेटियों को। गुजरात जीतेगा, बड़े बड़े नेता हारेंगे। पंजाब में हारे हैं, बड़े बड़े मुख्यमंत्री हार गए पंजाब में, बड़े बड़े हार गए। और हराने वाले कौन? कोई मोबाइल फोन की दुकान पर रिपेयर करने वाला लड़का, कोई 27 साल की LLB की पढ़ाई करने वाली लड़की, उन्होंने हराया है। जब बटन दबाने जाओगे, एक बात याद रख लेना, वो बटन के सामने निशान होगा। वो जो बटन है वो ना हाथ पंजे का, ना कमल के फूल का, ना किसी सीढ़ी का, ना किसी हाथी का, ना किसी झाड़ू का। वो बटन आपके बच्चों की किस्मत का बटन है। झाड़ू वाला बटन दबा दोगे, बच्चों की किस्मत चमक जाएगी। कोई और दबा दोगे तो 27 साल पहले हो गए 32 हो जाएंगे, इसमें क्या है? और 27 को 5 और ऐड हो जाएंगे, और क्या? तो बदल के देखो। हम एक मौका मांगते हैं, उसके बाद लोग मौका देते हैं। अरविंद केजरीवाल एक वाहिद इकलौता इंसान है राजनीति में, जो 1.5 महीना पहले दिल्ली में ये बोल सकता है, इतना जिगरा चाहिए उसके लिए, ये बोल सकता है कि मैं दिल्ली वासियों को विनती करता हूं, अगर मेरे 5 साल के काम अच्छे लगे तो वोट दे देना, वरना वोट मत देना प्लीज। और ये आते हैं, एक मौका और दे दीजिए, 5वीं 8 साला योजना, 8 साला 5वीं योजना, पता नहीं कितनी योजनाएं बन गई। हमारे घर तो कोई योजना पहुंची नहीं, हमारे बच्चे तो वही रह गए। ये जानबूझकर हमारे बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है गरीब का बच्चा पढ़ गया तो अफसर बन जाएगा, अफसर बन गया घर की गरीबी दूर कर देगा, गरीबी दूर हो गई तो इनके घरों के, इनके महलों के सामने अर्जियां लेकर कौन जाएगा। बस यही पंगा है, बस यही पंगा है। टैक्स देते हो आप लोग, ये मत समझना हम टैक्स नहीं देते, टैक्स देते हो सारे। तो आप ये मत समझना कि कोई बैंक लूट के भाग गया, ये बैंक का पैसा था, मेरा थोड़ी था। तुम्हारा था जी, तुम्हारा था। मैं बताता हूं कैसे था। सुबह उठते हो, चाय बनानी है, माचिस की तीली जलाई, टैक्स शुरू। माचिस लेने जाओगे, माचिस पे टैक्स है। गैस सिलेंडर के लिए लाइटर जगाया, टैक्स शुरू, गैस पे सिलेंडर है। चाय पत्ती डाली, टैक्स। चीनी डाली, टैक्स। दूध डाला, टैक्स। मोबाइल फोन, टैक्स। आटा, टैक्स। चावल, टैक्स। मक्खन पराठा, टैक्स। मोटरसाइकिल निकाला, डीजल पेट्रोल, टैक्स। घर पे आए, खाना खाया, टैक्स। और रात को सोते हुए आप कहते हो चलो अब टैक्स बंद हो गया, नहीं नहीं नहीं, ऊपर पंखा चल रहा है, टैक्स। 24 घंटे टैक्स देते हैं हम, तो पैसा कहां जाता है भाई? हमें तो कहते हैं खजाना खाली है, खजाना खाली है। अरे जो खाली है उसको खजाना क्यों कहते हो? उसको पीपा कहो, उसको अलमारी कहो। ये खजाने खाली जनता के लिए होते हैं, इनके लिए, बेटे बेटियों के लिए नहीं होते। ये खजाने भी भरे जाएंगे और भरे हुए खजाने से पैसे आप लोगों पर वापस आएंगे, शिक्षा के रूप में, इलाज के रूप में, अस्पताल के रूप में, बिजली के रूप में। दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगा देना। शहीद आजम भगत सिंह ये नारा लगाते थे, इनकलाब जिंदाबाद का। उनकी आत्मा को सुकून मिल जाएगा। चलो हैं कुछ लोग अभी जिन्होंने इनकलाब का दिया बुझने नहीं दिया, और इस दिए में हमें अगर तेल की जगह खून भी डालना पड़े तो डाल देंगे, लेकिन ये इनकलाब का दिया हम बुझने नहीं देंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के इनकलाब। सब लोग मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब,
वंदे वंदे। केम छो? मजाમાં? बहुत अच्छे। सबसे पहले मैं इतनी भारी संख्या में आई हुई हमारी आशा वर्कर बहनों का स्वागत करता हूं। मैं देख रहा हूं सामने चंद्रिका बहन बैठी हुई हैं। आज सुबह सुबह चंद्रिका बहन से मुलाकात हुई। आशा बहन वर्कर्स की जो जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा हुई। मैंने उनको भरोसा दिलाया। आशा वर्कर बहनें बहुत ताकतवर हैं। आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, मैं जानता हूं। जैसा अभी भगवंत मान जी ने बताया, वो पंजाब में आशा वर्कर्स के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग दिल्ली में आशा वर्कर्स के साथ काम करते हैं। एक एक आशा वर्कर हजार हजार 1,500 हजार घरों के जिम्मेदारी लेती है। अगर गुजरात की सारी आशा वर्कर बहनें इकट्ठी हो जाएं और एक एक घर में जाके बोले बदलाव बदलाव, परिवर्तन, झाड़ू 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 झाड़ू, 8 दिसंबर को सरकार पलट जाएगी। और अगर 8 दिसंबर को आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो चंद्रिका बहन को मैंने वादा किया है 1 महीने के अंदर आपकी सारी मांगे हम पूरी कर देंगे। हमें गुजरात में इतना प्यार मिल रहा है, आप लोगों से इतना प्यार मिल रहा है। मैंने पिछले जन्म में कुछ बहुत पुण्य किए होंगे जो गुजरात के लोगों से आज इतना प्यार हम लोगों को मिल रहा है। जहां जा रहे हैं इतनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे, युवा, सब लोग, इस जात के, उस जात के, इस धर्म के, उस धर्म के। मैं एक ही वादा करता हूं कि विश्वास दिलाना चाहता हूं, जितने हम गारंटी दे रहे हैं, जितनी बातें हम कर रहे हैं, जितने वादे हम कर रहे हैं, सरकार बनने के बाद एक एक वादा पूरा करने की मेरी गारंटी है। आपका इतना प्यार, आपका विश्वास मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। आज पूरे गुजरात में एक गजब की आंधी चल रही है, बदलाव की आंधी। मैं देखता हूं टीवी में, ये मीडिया वाले भी माइक लगाते हैं सड़क पे, पूछते हैं इस बार क्या माहौल है, कहते बदलाव। दूसरे से क्या माहौल है, बदलाव। चारों तरफ बदलाव बदलाव बदलाव। कुछ तो माता की कृपा हो रही है कि नहीं हो रही है? कुछ तो ऊपर वाले की झाड़ू चल रही है। गजब का माहौल है चारों तरफ। किस किस का बदलाव चाहिए, हाथ खड़ा करके बताइए। सबको बदलाव चाहिए। तो आज मैं आपको एक खुशखबरी देता हूं। केंद्र सरकार भी हिली हुई है इनकी। केंद्र सरकार को समझ नहीं आ रहा ये गुजरात में हो क्या रहा है। 27 साल के बाद इनका सिंहासन डोल रहा है। ऊपर से इंद्र देवता जो है वो अपना प्रकोप कर रहे हैं, यहां पे इनका सिंहासन डोल रहा है। तो केंद्र सरकार ने अपनी खुफिया एजेंसी भेजी, बोले गुजरात में सर्वे करके आओ, देख के आओ क्या माहौल है। उस खुफिया एजेंसी ने आईबी का नाम सुना है आप लोगों ने? आईबी की रिपोर्ट है कि गुजरात चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, उनकी रिपोर्ट है, उनकी रिपोर्ट है, सरकार की रिपोर्ट है। लेकिन उस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अभी मार्जिन पे बन रही है सरकार। 92, 93, 90, 92, 93 सीट आ रही है। देखो अगर मार्जिन पे सरकार बनी तो ये बड़े बदमाश हैं, ये तोड़ देंगे सरकार को। एक जोर का धक्का मारो, सारे जने लग जाओ। 1 महीना बचा है बस। 1 महीने में खूब मेहनत करो, घर घर जाओ,
खाना पीना सोना बंद। अब 1 महीने में जोर लगा दो, 150 क्रॉस करनी चाहिए, 150 सीट आनी चाहिए। मजबूत सरकार बनाओ, स्थिर सरकार बनाओ। दिल्ली वालों ने 70 में से 67 सीट दी थी, पंजाब वालों ने 117 में से 92 सीट दी थी, गुजरात वालों 182 में से 150 सीट दे दो, सारे वादे पूरे करेंगे। अब अपनी सरकार बननी तो तय। सरकार बनने के बाद क्या क्या काम करने हैं? 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, 15 दिसंबर तक सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम करना है, इतने सारे 27 साल में आंदोलन हुए गुजरात में, इतने आंदोलन हुए, इन्होंने हर आंदोलन को कुचलने, किसी की मांग नहीं मानी, इन्होंने किसी की बात नहीं मानी, सुनते ही नहीं है। ये अहंकार हो गया इनको, घमंड हो गया इनको, किसी की नहीं सुनते हैं। पाटीदार आंदोलन हुआ, इतने बच्चों के ऊपर इन्होंने केस कर दिए, युवाओं के ऊपर केस कर दिए, झूठे झूठे केस कर दिए, जेल में डाल दिया इन लोगों ने। आज तक हमारे बच्चे जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, उनके मां बाप उनका इंतजार कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन हुआ, किसानों के ऊपर इन्होंने फर्जी केस कर दिए, जेल में डाल दिया। अभी थोड़े दिन पहले मालधारी समाज का आंदोलन हुआ, उनको इन्होंने कुचलने की कोशिश की। ठाकुर समाज का आंदोलन हुआ, पुलिस पे ग्रेड वालों का आंदोलन हुआ, क्षत्रिय समाज का आंदोलन हुआ, उनको इन्होंने कुचलने की कोशिश की। दलित समाज का आंदोलन हुआ, आदिवासी समाज का आंदोलन हुआ, इतने सारे कर्मचारियों ने आंदोलन किया, आशा वर्कर्स ने आंदोलन किया, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने आंदोलन किया, वीसी ने आंदोलन किया, होमगार्ड ने आंदोलन किया, ठेके के कर्मचारियों ने आंदोलन किया, इतने एक सर्विसमैन आए हुए हैं, इन लोगों ने आंदोलन किया। इनके ऊपर जितने आंदोलनकारी हैं, जितने केस इन लोगों ने किए, उन सारे केस को वापस लेंगे। जिन लोगों को इन्होंने जेल में डाल रखा है, सबको जेल से उनके घर भिजवाएंगे, सारे केस वापस लेंगे 1 महीने के अंदर। 15 दिसंबर को सरकार बनेगी, 1 महीने के अंदर सारे आंदोलनकारियों के केस वापस लिए जाएंगे। जिन लोगों को इन्होंने नौकरी से निकाला, उन सबको नौकरी पे वापस बहाल किया जाएगा, और जितने आंदोलनकारी हैं उनकी सबकी मांगें पूरी की जाएगी। एक सर्विसमैन भाई बैठे हैं हमारे दिल्ली में, हम लोग, अगर कोई भी सैनिक, दिल्ली का रहने वाला कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होता है, उसको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते हैं। पंजाब के अंदर भी हमने ये लागू कर दिया। मैं खुद उनके घर जा जाके 1-1 करोड़ के चेक दे के आया हूं। गुजरात में भी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? गुजरात में रहने वाला अगर कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होता है, गुजरात पुलिस का कोई भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पे काम करते हुए अगर शहीद होता है, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मिलनी चाहिए। मुझे पता चला कि जब से मैंने ये आवाज उठाई, गुजरात सरकार ने ऐलान तो कर दिया, अभी तक दिया एक को भी नहीं है। नीयत खराब है, नीयत खराब है, चिंता मत करो। पिछले 5 साल में जितने सैनिक शहीद हुए, सबके घर में जा जाके गुजरात के 1-1 सैनिक को 1-1 करोड़ रुपए दे के आऊंगा। सरकार बनने के बाद मैं खुद जा जाके 1-1 सैनिक के घर 1-1 करोड़ दे के आऊंगा। तो सरकार बनेगी, सरकार बनना तय। सबसे पहला काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। गुजरात में बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत भ्रष्टाचार है, लूट लिया इन्होंने। मेरे को पता चला एक एमएलए है, चुनाव के पहले उसके पास 4 एकड़ जमीन थी, 5 साल के बाद 1000 एकड़ जमीन है। 1000 एकड़ जमीन, बाप रे, कितना कमा लिया। अभी अभी मैं बैठा था, एक आदमी चिट दे के गया मेरे को, नाम लेना ठीक नहीं है, एक एमएलए के बारे में लिखा है, 2000 रुपए की नौकरी करता था, अब 20,000 करोड़ का मालिक है। कितना खा गए ये लोग यार। इतनी जमीन खरीद ली, बीवी के नाम पे, बच्चों के नाम पे, मां बाप के नाम पे, भाई बहन के नाम पे, बच्चों के बच्चे पैदा नहीं हुए उनके नाम पे भी जमीन खरीद ली, कोठियां बना ली इन लोगों ने।
स्विस बैंक में ले गए, देश के बाहर ले गए सारा पैसा। हर साल गुजरात सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। 2.5 लाख करोड़ का बजट है गुजरात का, कहां खर्च करती है? आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके गांव में 27 साल में कोई सड़क बनी, कोई स्कूल बना, कोई अस्पताल बना, कोई आपको दवाई दिलवाई इन्होंने, कोई कॉलेज बना? कोई काम नहीं किया इन्होंने 27 साल में। फिर ये सारा पैसा खर्च कहां करते हैं? सारा पैसा खा गए, सारा खा गए, इतना पैसा खा गए, इनके पेट में हाथ डाल के सारा पैसा बाहर निकालेंगे, एक एक पैसा बाहर निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं इनको, बख्शेंगे नहीं। निकलना चाहिए कि निकलना चाहिए गुजरात का पैसा सारा? कहते हैं पैसा कहां से आएगा? पैसा तुम्हारी जेब से आएगा, जो तुमने लूटा सारा पैसा वापस लेंगे तुम लोगों का, छोड़ेंगे नहीं। जितना पैसा इन लोगों ने लूटा है, जितने इनके काले धंधे हैं सारे बंद करेंगे, सब काले धंधे बंद करेंगे। कोई जहरीली शराब बेचता है, कोई नशा बेचता है, कोई कुछ बेचता है, इन्होंने डुबो दिया पूरे गुजरात को इन लोगों ने मिलकर। ये जितने पेपर फोड़ने वाले हैं ये सारे नेता हैं इनके, ये सारे नेता हैं जो पेपर फोड़ने वाले हैं। सारे पेपर फोड़ने वालों को 10-10 साल की जेल भेजेंगे इनको, एक एक को पकड़ के। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे गुजरात को। हमारा कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई नेता हमारा चोरी नहीं करेगा। अगर हमारा कोई नेता चोरी करेगा जेल जाएगा, छोड़ेंगे नहीं उसको भी, हमारे वाले को भी नहीं छोड़ेंगे। अभी थोड़े दिन पहले पंजाब में भगवंत मान साहब ने करिश्मा, मैं भूल गया बताना, आज भगवंत मान साहब का जन्मदिन है। मैं भी अपने जन्मदिन पे गुजरात में ही था, ये भी अपने जन्मदिन पे गुजरात में। गुजरात के लोग इतना प्यार करने लगे, हम अपना जन्मदिन भी अब गुजरात में मनाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले पंजाब में हमारा जो हेल्थ मिनिस्टर था वो कुछ गड़बड़ करने लगा। भगवंत मान को किसी ने कान में आके कहा कि आपका हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है। अभी मीडिया को नहीं पता था, विपक्ष को भी नहीं पता था, ये चाहते तो दबा देते। इन्होंने पता कराया, जांच कराई तो पता चला वो गड़बड़ कर रहा है। इन्होंने पता है क्या किया? अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डाल दिया। कोई करता है आज तक? 70 साल 75 साल आजादी के हो गए, किसी मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं किया कि अपने मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। इतनी कट्टर ईमानदार पार्टी है हमारी, इतनी कट्टर ईमानदार लोग हैं हम, अपने वालों को भी नहीं बख्शेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त शासन आएगा गुजरात के अंदर। गुजरात के लोगों का, सरकार का, गुजरात सरकार का एक एक पैसा आपके और आपके बच्चों के विकास के ऊपर खर्च होगा। आप गुजरात के किसी भी विभाग में जाओ, आपसे पैसे मांगते हैं काम करने के, चाहे जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, राशन कार्ड बनवाना हो, विधवा पेंशन लेनी हो, वृद्धावस्था पेंशन ले, कोई भी काम कराना हो, बिजली का कनेक्शन लेना हो, पानी का कनेक्शन लेना हो, बिल ठीक कराना हो, बिल देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? 15 दिसंबर के बाद से आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। दिल्ली के अंदर कोई रिश्वत नहीं चलती, पंजाब के अंदर कोई रिश्वत नहीं चलती, बिना पैसे के काम होता है। हर सरकारी दफ्तर में बिना पैसे के काम होता है। गुजरात में भी 15 दिसंबर के बाद भ्रष्टाचार खत्म, बिना पैसे के आपका काम होगा। करप्शन खत्म करेंगे, खूब पैसा बचेगा, खूब पैसा बचेगा, इतना पैसा बचे। ये कहते हैं गुजरात सरकार घाटे में चल रही है। क्यों घाटे में चल रही है? दिल्ली सरकार तो घाटे में नहीं चल रही, दिल्ली सरकार तो फायदे में चल रही है, क्योंकि हम ईमानदार लोग हैं। अब गुजरात सरकार घाटे में नहीं चलेगी, खूब पैसा बचेगा। उस पैसे से सबसे पहला काम करेंगे, आपकी बिजली फ्री कर देंगे। 1 मार्च के बाद से गुजरात के लोगों का बिजली का बिल 0 आया करेगा।
दिल्ली में भी बिजली का बिल 0 आता है, पंजाब में भी बिजली का बिल 0 आता है, गुजरात में भी 1 मार्च के बाद से आपका बिजली का बिल 0 आया करेगा। 24 घंटे बिजली आएगी, बिजली का बिल 0 आएगा। ये मेरे को खूब गाली देते हैं, केजरीवाल बिजली मुफ्त क्यों करता है, केजरीवाल बिजली मुफ्त क्यों करता है। गुजरात के सीएम को 5000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। गुजरात के हर मंत्री को 4000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। मैंने कहा मैं गुजरात की जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा तो इनको मिर्ची लगती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सीएम को बिजली मुफ्त मिलती है, मंत्रियों को बिजली मुफ्त मिलती है, तो जनता को बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? जनता जनार्दन है, जनता को भी बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए। तो 1 मार्च से आपका बिजली का बिल मुफ्त आएगा। मैं देख रहा हूं इतनी सारी मां बहनें बेटियां बैठी हैं, जिन जिन लोगों ने अपने बैंक अकाउंट नहीं खुलवाए, बैंक अकाउंट खुलवा लो। 18 साल से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में 1000 रुपए महीना हर महीने डलवाया करेंगे। अगर किसी घर में 2 महिलाएं हैं, मां है, बेटी है 18 साल से ऊपर, तो 1000 रुपए अलग अलग मिलेंगे, 2000 रुपए मिलेंगे। किसी के घर में 3 महिलाएं हैं तो 3000 रुपए मिलेंगे, तीनों को अलग अलग मिलेंगे। हमें तुम्हारे चिंता करवानी जरूर नहीं। तुम्हारे भाई आवी गए छे। तो महिलाओं के अकाउंट में 1-1000 रुपए डलवाएंगे। आप दिल्ली के बारे में आपने सुना होगा, दिल्ली में हमने खूब सारे नए स्कूल बनाए हैं, शानदार स्कूल बनाए हैं। उसमें सारी पढ़ाई फ्री। उसमें अमीरों के बच्चे भी पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे भी पढ़ते हैं, रिक्शे वाले का बच्चा भी पढ़ता है, जज का बच्चा भी पढ़ता है, आईएएस का बच्चा भी पढ़ता है, मजदूर का बच्चा भी पढ़ता है। एक ही डेस्क पे आईएएस का, जज का और मजदूर का बच्चा एक ही डेस्क पे बैठ के एक साथ पढ़ते हैं। ऐसे ढेर सारे स्कूल। अब मजदूरों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं दिल्ली में, रिक्शे वाले का बच्चा इंजीनियर बन रहा है, गरीबों के बच्चे इतनी शानदार अंग्रेजी बोलते हैं, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। ऐसे ढेर सारे स्कूल पूरे गुजरात के अंदर बनाएंगे। हमारे शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया। सुना है? किस किसने सुना है मनीष सिसोदिया का नाम? उन्होंने सारे स्कूल बनवाए हैं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली के अंदर गजब किया, इतने सारे शानदार स्कूल बनाए हैं। अभी थोड़े दिन पहले वो गुजरात आए थे। उन्होंने कहा गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, गुजरात में भी गांव गांव के अंदर, शहर शहर के अंदर ढेर सारे स्कूल बनाएंगे। अभी उन्होंने गुजरात आना था, लेकिन आज इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। वो नहीं चाहते कि मनीष सिसोदिया गुजरात में जाके चुनाव का प्रचार करें। 1 महीने तक ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही 8 तारीख को नतीजे आएंगे, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। मैं मनीष जी को कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करो, आपके ना आने से प्रचार बंद नहीं होने वाला। ये सारी जनता प्रचार कर रही है, घर घर जाके प्रचार कर रही है। तो गांव गांव में स्कूल बनाएंगे आपके बच्चों के लिए। दिल्ली में हमने शानदार अस्पताल बनवा दिए हैं, खूब सारे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, गली गली के अंदर सारा इलाज मुफ्त कर दिया। आपको बुखार है, आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, फ्री में डॉक्टर देखता है, दवाइयां फ्री, टेस्ट फ्री, सारा इलाज फ्री। आपको कैंसर हो गया, बड़े अस्पताल में जाओ, खूब सारे बड़े बड़े अस्पताल खोल दिए पूरी दिल्ली में। बड़े अस्पताल में जाओ, आपका 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख का भी खर्चा आएगा, सारा मुफ्त है। गुजरात में भी गांव गांव के अंदर मैंने पूरी प्लानिंग की है, 20,000 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। पूरे गुजरात के अंदर जगह जगह बड़े बड़े अस्पताल बनाएंगे। 6.5 करोड़ गुजरातियों का, हर गुजराती का इलाज मुफ्त होगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज मुफ्त करेंगे।
मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को भ्रष्टाचार करना नहीं आता, मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती इन लोगों की तरह। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, देशभक्त आदमी हूं, ईमानदार आदमी हूं। मेरे को स्कूल बनवाने आते हैं, मेरे से स्कूल बनवा लो। मेरे को अस्पताल बनवाने आते हैं, मेरे से अस्पताल बनवा लो। अगर राजनीति करनी है इनके पास चले जाओ, अगर भ्रष्टाचार करना है इनके पास चले जाओ, गुंडागर्दी चाहिए इनके पास चले जाओ। अगर ईमानदार सरकार चाहिए, अगर अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवाने हैं मेरे पास आ जाओ, मैं स्कूल बनवा दूंगा। अगर अपने परिवार के लिए इलाज चाहिए, मैं आपके लोगों का अच्छा इलाज करा दूंगा, मेरे को इलाज कराना आता है, इंजीनियर हूं मैं। मेरे को अगर आपको सड़कें ठीक करानी है मैं सड़कें ठीक कर दूंगा। आज तक हमने दिल्ली और पंजाब में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है, लोगों का अच्छा इलाज कराया है, करोड़ों लोगों की दुआएं कमाई हैं हम लोगों ने। उन दुआओं की वजह से आम आदमी पार्टी आज बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक राज्य के अंदर जीतती जा रही है। यहां भी हम दुआएं कमाने के लिए आए हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं। अभी केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में लिखा है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगाई गुजरात के अंदर है। यह मैं नहीं कह रहा, उनकी रिपोर्ट कह रही है। और सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में जितनी महंगाई है उससे डबल महंगाई गुजरात के अंदर है, यह वहां लिखा है। तो अगर दिल्ली में कोई चीज 100 रुपए की बिकती है तो गुजरात में वो चीज 200 रुपए की बिकती है। क्यों? क्योंकि गुजरात में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ईमानदार सरकार लेके आओ, जो चीज दिल्ली में 100 रुपए की बिकती है गुजरात में भी 100 रुपए की बिका करेगी, महंगाई कम कर देंगे गुजरात के अंदर भी। ईमानदार सरकार आएगी, महंगाई कम होगी। अभी आजकल इनके केंद्र सरकार के खूब नेता आ रहे हैं। पिछले 1 महीने में मैंने सुना ये आए, बोले 30,000 करोड़ का पैकेज, 30,000 करोड़ का गुजरात के लिए पैकेज देके गए। दिया कि नहीं दिया? पढ़ा आप लोगों ने? सुना? 30,000 करोड़ रुपए का पैकेज। दोस्तों मेरे पास 30,000 करोड़ का पैकेज नहीं है देने के लिए। मैं आपको 30,000 करोड़ का पैकेज नहीं दे सकता, लेकिन यह कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, हर परिवार को हर महीने 30-30 हजार रुपए का फायदा करा दूंगा। आपकी बिजली फ्री कर दूंगा, आपके परिवार का इलाज फ्री होगा, आपके बच्चों की शिक्षा फ्री कर देंगे। जितने बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, 3-3 हजार रुपए महीना। कौन कौन बेरोजगार है जरा हाथ खड़े करें। कितने सारे लोग बेरोजगार हैं, कितने सारे लोग बेरोजगार हैं। मैं एक टीवी में देख रहा था इंटरव्यू, इनका एक बड़ा नेता, उनसे पूछा किसी टीवी चैनल वाले ने, बोला जी ये इतने सारे बेरोजगार हैं, इनको रोजगार क्यों नहीं देते आप? तो पता है क्या बोला वो? कहता है ये बेरोजगार इसलिए हैं क्योंकि इनको कोई काम नहीं, ये आलसी हैं, ये काम नहीं करना चाहते, ये काबिल नहीं है, इनको काम नहीं करना आता, निकम्मे हैं। इनकी इतनी हिम्मत हो गई, हमारे बच्चों को गालियां देते हैं। इस बार जब चुनाव में वो बटन दबाने जाओ, बटन दबा के बता देना कि तुम निकम्मे हो कि इनके बच्चे निकम्मे हैं दोस्तों। और मैं देख रहा था एक बारी, एक जगह मैंने देखा 10-12 बच्चे खड़े होकर चिल्ला रहे थे मोदी मोदी मोदी। मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि बच्चों, नारे तुम जिसके लगा लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर तुमको भी नौकरी तो मैं ही दूंगा, तुम्हारे घर के लोगों को भी नौकरी मैं ही दूंगा, तुम्हारी भी बिजली मैं ही मुफ्त करूंगा। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा मोदी मोदी के नारे क्यों लगा रहे हो, क्या दिया इन लोगों ने तुम्हें 27 साल में? कहता सर नारे तो इसलिए लगा रहे हैं, पैसे दिए इन्होंने हमें, वोट तो हम आपको ही डालेंगे। अभी जैसे मान साहब ने, भगवंत मान जी ने बताया, पिछले 3 दिन से पेपर हो रहे हैं पंजाब के अंदर पुलिस की भर्ती के, एक भी पेपर नहीं फूटा। क्यों? पंजाब में ईमानदार सरकार है। यहां पे गुजरात में रोज पेपर फूटते हैं, रोज पेपर फूटते हैं। हमने पूरी लिस्ट बना ली है, जितनी भर्तियां बाकी हैं, सरकारी भर्तियां, तलाटी की नौकरी बाकी है,
फरवरी के महीने में तलाटी का पेपर होगा, जून जुलाई तक सबकी भर्ती हो जाएगी, पोस्टिंग हो जाएगी। टेट के पेपर बाकी हैं, जून जुलाई में टेट के पेपर हो जाएंगे। नवंबर के अंदर सारी पुलिस की भर्तियां पूरी हो जाएंगी। जितने भी पेपर बाकी हैं अगले साल दिसंबर के पहले सारे पेपर करवा देंगे, और अगर किसी ने पेपर फोड़ा तो जेल जाएगा, वो 10 साल के लिए उसको सजा देंगे। अगले साल अयोध्या में रामचंद्र जी का मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। कौन कौन रामलल्ला के दर्शन करने जाना चाहता है अयोध्या? सब जाना चाहते हैं, लेकिन फिर आना जाना, खाना पीना, रहना, पैसे बड़े लगते हैं, और पूरे परिवार को लेके जाओ तो उतने पैसे नहीं हैं। तो दिल्ली में हमने अयोध्या जी का दर्शन फ्री कर दिया। हम जनता को लेके जाते हैं, स्पेशल ट्रेन चलाते हैं, आना जाना, खाना पीना, रहना, सोना सारा सरकार देती है। आपको अपनी जेब से एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए भी हम स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, आपके लिए भी हम रामलल्ला के, आपको सब लोगों को फ्री में रामलल्ला के दर्शन करा के लाएंगे। अयोध्या जी आपको लेके जाएंगे। ये इतना मेरे को गालियां देते हैं, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे देश में पैदा होने वाले हर बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हमारे देश में पैदा होने वाले हर इंसान को अच्छा और फ्री इलाज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये मेरे को ये इतना फ्री के खिलाफ क्यों बोलती हैं? ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर इतने स्कूल बनने लग गए, अस्पताल बनने लग गए, तो इनको लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा। मैं कहता हूं मैं स्कूल बनाऊंगा, कहते नहीं नहीं स्कूल नहीं बनाने। मैं कहता हूं मैं अस्पताल बनाऊंगा, नहीं नहीं अस्पताल नहीं बनाने। मैं कहता हूं मैं जनता का फ्री में इलाज करूंगा, नहीं नहीं फ्री में इलाज नहीं करना। इनको लगता है कि अगर हमने फ्री 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 कर दिया तो इनके लूटने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो एक चीज समझ लेना, अगर कोई भी नेता फ्री के खिलाफ बोले, अगर कोई भी नेता का ये फ्री की रेवड़ी, समझ लेना उस नेता की नीयत खराब है, उस नेता का दिल काला है। वो लूटना चाहता है, वो पैसे कमाना चाहता है, वो चोरी करना चाहता है, इसलिए फ्री के खिलाफ बोल रहा है। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार चाहिए। डबल इंजन की नहीं, अब गुजरात के लोगों को नए इंजन की सरकार चाहिए। ये डबल इंजन कहां से आ गया? आपके घर में मोटरसाइकिल खराब हो जाए तो कोई डबल मोटरसाइकिल की, एक मोटरसाइकिल के पीछे दूसरी मोटरसाइकिल थोड़ी लगाते हो, नई मोटरसाइकिल लाते हो कि नहीं लाते हो? आपके घर में कार खराब हो जाए तो डबल कार की थोड़ी सरकार होती है। अगर एक इंजन खराब हो गया तो उसको बदलो, नया इंजन लेके आओ। मार्केट में नया इंजन आ गया, शानदार इंजन है, नया इंजन है, उसमें नई टेक्नोलॉजी, 21वीं सदी का इंजन है, शानदार इंजन है। इस बार नए इंजन की सरकार चाहिए, डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए। दोस्तों, मैं अपनी सारी गारंटी पूरी करूंगा। आप लोगों से मेरे को 2 वादे चाहिए। यहां जितने लोग बैठे हैं, आप जब बाहर निकलोगे अपना अपना मोबाइल फोन निकालना और उसमें व्हाट्सएप खोलना, और व्हाट्सएप के ऊपर जितने आपके दोस्त यार रिश्तेदार हैं सबको मैसेज करना है, सबको मैसेज करना है कि मैं इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा हूं। मेरे भाई, बदलाव के लिए इस बार तू भी आम आदमी पार्टी को वोट दियो। करोगे सब लोग?